ان لوگوں کو شاباش دی جاتی ہے جو اپوزیشن کے خلاف وہی زبان اختیار کریں جو نارملی لوگ اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی پسند نہیں کرتے. وہ ایک سلسلہ جاری رکھا جائے. خود ہمارے اندر ایک ایسی فضا قائم کی جا رہی ہے سرکاری طور پر جس کا نتیجہ اس ساری قوم کو بھگتنا ہوگا. سینٹ اجلاس میں اپوزیشن اور حکومت آمنے سامنے ایک دوسرے پر تاک تاک کر وار کیے. راجہ ظفر الحق بولے حکومت کی منفی سوچ ہے جس کے نتائج قوم کو بھگتنا پڑ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کی اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے کی ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں. شری رحمان نے کہا امریکہ اور اٹلی والے حالات ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ آپ بتائیں آپ کی پالیسی ہے کیا؟ اس وقت وزیر اعظم پاکستان سے لاپتہ ہیں. آج آپ باہر دیکھیں لاک ڈاؤن کا سب مطلب کھل گیا ہے, سب کچھ کھل گیا ہے, کوئی ایس او پیز نہیں ہے. اور میں سارے ملک کی بات کر رہی ہوں, اس لیے ایس او پیز کوئی نہیں قبول کر رہا کیونکہ آپ کو ملک کے ہائیسٹ آفس سے بہت ہی مکسڈ میسج اور کنفیوز میسج مل رہا ہے. مسنگ پرسن پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. ہی از مسنگ, ہز پالیسی از مسنگ, and his words of unity and healing are missing. کوئی کنفیوژن نہیں, پالیسی واضح ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سینٹ میں خطاب. کہا لاک ڈاؤن کورونا کا حل نہیں, جب تک ویکسین نہیں آتی دیکھنا ہے وائرس کو کس طرح محدود کرنا ہے. سندھ کو ہر چیز آبادی کے تناسب سے زیادہ دی. جس پیپلز پارٹی میں وفاق کی خوشبو تھی اب صوبے کی بو آ رہی ہے. تیاری کر لو, ہم سندھ میں بھی آ رہے ہیں. سینٹ سیکریٹریٹ نے 3 سینیٹرز کو بخار ہونے پر اجلاس میں شرکت سے روک دیا. ذرائع کے مطابق روکے گئے سینیٹرز میں عابدہ عظیم, مولانا عطاء الرحمان اور فدا محمد شامل ہیں. تینوں سینیٹرز کا دوبارہ کورونا ٹیسٹ کرایا جائے گا. ایک ادھر سے سیاسی تقریر کرتا ہے, دوسرا ادھر سے دشتر چلاتا ہے. ایسے اجلاس کا کیا فائدہ؟ وفاقی وزیر فواد چودھری کا ٹویٹ. مزید کہا ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کو خط لکھا ہے. قومی اسمبلی اجلاس میں محض سیاسی تقاریر وقت کا ضیاع ہے. ممبران کو اکٹھا کیا ہے تو پہلے انہیں سائنٹسٹ اور وائرولوجی کے ماہرین سے بریفنگ دلوائے کہ کورونا ہے کیا. وفاقی وزیر الزامات لگاتے ہیں, بتاتے کچھ بھی نہیں. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں کبھی ان لوگوں نے بجٹ کتاب پڑھی ہوتی تو سوال نہ اٹھاتے. سندھ کے اسپتالوں میں ملک بھر کے مریضوں کا علاج مفت ہوتا ہے. نرسز کے حوالے سے قانون بنا رہے ہیں. غریب لوگ مر رہے ہیں گندا پانی پینے سے اور تم دفتروں میں بیٹھے صرف فائلوں پہ رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے بیٹھے. جو لوگ بیوروکریسی کے یہ میری آواز سن رہے ہیں, اگلے بدھ کو میں جہاں جہاں فائل جتنے ہفتے رکی ہے, جس نے رکاوٹ ڈالی ہے, اگر انہوں نے راہ راست پہ نہ آئے تو میں پوری پریس کانفرنس کر کے ہر چیز جو ہے اس کو بے نقاب کروں گا. اس لیے کہ میرے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو گیا ہے. بیوروکریسی میں موجود کالی بھیڑیں صاف پانی کی فراہمی میں رکاوٹیں ڈال رہی ہیں. صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا. گورنر پنجاب چودھری سرور بھی پھٹ پڑے. کہتے ہیں بیوروکریسی میں موجود کالی بھیڑوں کو بے نقاب کروں گا. 4 محکموں کی جانب سے آب پاک اتھارٹی کی فائلز سرخ فیتے کی نظر کر دی جاتی ہیں. 1.5 سال سے فائلیں ایک سے دوسرے محکمے کا سفر کرتی ہیں. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری. کورونا وائرس کی صورتحال پر غور. انتخابی اصلاحات پر رپورٹ کابینہ میں پیش کی جائے گی. ای سی سی اور توانائی کمیٹی کے فیصلوں کی توسیع کی جائے گی. قومی کمیشن رائے خواتین کے ممبران کی تعیناتی کی بھی منظوری دی جائے گی. اسمارٹ لاک ڈاؤن کا دوسرا روز. عید کی خریداری کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نکل آئی. لاہور کی چھوٹی مارکیٹس اور دکانوں میں عوام کا ہجوم. سماجی فاصلوں کا خیال, نہ ہی کوئی احتیاطی تدابیر. حکومتی ایس او پیز کی دھجیاں بکھیر دی گئیں. خود احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا تو درکنار, بچوں کو بھی والدین لے آئے بازار.
मार्केट्स और दुकानें खुलते ही शहरियों का रश, खवातीन की छोटे बच्चों के हमरा ईद की शॉपिंग। दुकानों में SOPs पर अमल दरामद ना होने से नन्हे फूलों में कोरोना वायरस फैलने के खदशात बढ़ गए। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर वजीर आला जाम कमाल का तशवीश का इजहार। कहते हैं SOP पर अमल दरामद ना हुआ तो बहुत सी चीजों को बंद करना पड़ेगा। दुकानदार और दीगर लोग हुकूमत से ताउन करते हुए रश खत्म करें। मसाजिद में एहतियाती तदाबीर पर बेहतर तौर पर अमल दरामद किया जा रहा है। कोरोना के तेज हो गए वार, मजीद सैकड़ों अफराद बीमार। मुल्क में वायरस से मुतासरीन की तादाद 32,000 से तजावुज। कोरोना ने मजीद 39 अफराद की जान ले ली। मजमूई अमवात 706 तक जा पहुंची। सिंध में 12,017 और पंजाब में 11,869 केसेस हैं। अब तक 8,555 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। तिब्बी अमले पर कोरोना के हमले थम ना सके। 24 घंटों में मजीद 99 हेल्थ वर्कर्स वायरस से मुतासिर। मजमूई तादाद 882 हो गई। अब तक डॉक्टर समेत तिब्बी अमले के 11 अफराद जान की बाजी हार चुके। उधर कराची के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों की नर्सेस का एहतजाज। इल्जाम आयद किया कि कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, हुकूमत हिफाजती सामान फराहम नहीं कर रही। इस्लामाबाद में कब्जा माफिया का राज है। जस्टिस काजी अबीन ने रिमार्क्स दिए कि कोई कब्जा माफिया के सामने खड़ा नहीं हो सकता। प्लॉट कब्जा केस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने IG इस्लामाबाद की सरजनिश कर दी। रिमार्क्स में कहा, अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है। कत्ल, इग़वा, कब्जा और हादसे के मुकदमात में तफ्तीश का किताबचा होना चाहिए। पाकिस्तान बनने के बाद ये पहला सबक था जो तफ्तीशी अफसरान को देना चाहिए था। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन की नैब के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस असजद गुराल पर मुश्तमिल नए बेंच ने भी समाअत से माजरत कर ली। चौधरी बरादरान ने चेयरमैन नैब के इख्तियारात को चैलेंज कर रखा है। करप्शन के कोरोना वायरस पाकिस्तान में वबा पर भी सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन कोरोना पर सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग में लगी हुई है। बुलंदो बांग दावे करने वाले अपोजिशन रहनुमाओं ने अमली तौर पर कुछ नहीं किया। ये वक्त सियासत से बालातर होकर आवाम की खिदमत का है। नब्बे की दहाई का फिक्सिंग स्कैंडल। सलीम मलिक ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ICC का दरवाजा खटखटाने का इंदिया दे दिया। साबिक क्रिकेटर का कहना है, PCB इंसाफ नहीं करेगा तो सब कुछ सामने ले आऊंगा। कई दिन पहले लिखा था, PCB ने जवाब नहीं दिया। ICC एंटी करप्शन के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। बेटे को अच्छी कारकर्दगी के बावजूद टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया। और कराची में कल से रिमझिम हो गई। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। शहर कायद में हल्की बारिश का सिलसिला 14 मई तक जारी रहेगा। ईरान से दाखिल होने वाले मगरबी सिस्टम के जेर असर बलूचिस्तान और बालाई सिंध में भी बारिश का इम्कान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये है 92 न्यूज और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ उन्ज़िला इरफान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ कि सिंध में 1 जून को स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने ये वाज़े कर दिया है। कहते हैं कि नई तारीख का ऐलान स्टीयरिंग कमेटी के अगले इजलास में किया जाएगा। 9वीं, 10वीं, 11वीं जमात के बच्चों को प्रमोट करने का कोई कानून नहीं। उसके लिए कानून में तरमीम या ऑर्डिनेंस लाना होगा। बैठकर ऐलान करना कि तमाम बच्चे प्रमोट हैं, इतना आसान नहीं। हर जगह बच्चों को ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते। पिछली बार भी बाकी सूबों ने फैसला करने में ताखीर की, लेकिन हमने कर लिया। प्रमोशन को काबिल अमल बनाने के लिए जो इकदाम जरूरी हैं वो किए जा रहे हैं।
सिंध में 1 जून को स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने ये वाज़े किया है। उन्होंने कहा कि नई तारीख का ऐलान स्टीयरिंग कमेटी के अगले इजलास में किया जाएगा। 9वीं, 10वीं, 11वीं जमात के बच्चों को प्रमोट करने का कोई भी कानून नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में मौजूद काली भेड़ें साफ पानी की फराहमी में रुकावटें डाल रही हैं। सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी फट पड़े। कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में मौजूद काली भीड़ों को बेनकाब करूंगा। 4 महकमों की जानिब से आब पाक अथॉरिटी की फाइलें सुर्ख फीते की नजर कर दी जाती हैं। 1.5 साल से फाइलें एक महकमे से दूसरे महकमे का सफर कर रही हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते। क़यामत के दिन इनके मैं गिरेबान पकड़ूंगा। इन्होंने मेरे पंजाब के गरीब लोगों को पीने के साफ पानी में रुकावटें पैदा की। तो मैं अब भी कहता हूं कि खुदा के लिए खुदा का खौफ करो। इस रास्ते में, नेक काम के रास्ते में रुकावट न बनो। गरीब लोग मर रहे हैं गंदा पानी पीने से, और तुम दफ्तरों में बैठे सिर्फ फाइलों पर रुकावटें पैदा करने के लिए बैठे हो। तो मैं आपसे इनसे मैं मीटिंग इस हफ्ते कर रहा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर को भी और मेरा बोर्ड भी। अब हम बिल्कुल इस हालत में पहुंच गए हैं कि हम इससे ज्यादा लोगों के सामने मिन्नत समाजत नहीं कर सकते कि सर हम अगले हफ्ते दे देंगे, हम अगले। तू भी ऑनेस्ट, मैं तो बहाने बना के भी अब मेरी बस होगी। तो अब मैं, जो लोग ब्यूरोक्रेसी के ये मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगले बुध को मैं जहां जहां फाइल जितने हफ्ते रुकी है, जिसने रुकावट डाली है, अगर इन्होंने राह रास्त पे ना आए तो मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर चीज जो है उसको बेनकाब करूंगा। इसलिए कि मेरे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो गया है। अभी आपको खबर दें कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हक में पंजाब असम्बली में मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई है। करारदाद मुस्लिम लीग क़ाफ के हाफिज अम्मार की जानिब से जमा कराई गई। शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात के लिए उनसे बात करेंगे। शाहिद चौधरी, बताइएगा करारदाद का मतन क्या है? जी बिल्कुल, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से करारदाद पंजाब असम्बली ने मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली है। करारदाद मुस्लिम लीग काफ के हाफिज अम्मार यासिर की जानिब से जमा करवाई गई थी। इस हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना है कि हम सब नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफ़िज़ हैं। वफाकी कबीना में अक्सर वज़रा ने इस तरमीम की मुखालफत की थी। कबीना ने तय किया था कि जब तक कादियानियों का सरबराह तस्लीम नहीं करता कि वो गैर मुस्लिम है, तब तक इस मिशन में शामिल नहीं किया जा सकता। तो इसी हवाले से जो करारदाद का मतन है, उस हवाले से उनका ये भी कहना है कि ये अवान वफाकी कबीना को जो है वो खराज तहसीन भी पेश करता है कि कभी इस हवाले से जो उनका ये भी कहना था कि कभी हज माह में तब्दीली कर दी जाती है। ये अवान यादा करता है कि आए रोज नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ना कोई मसला खड़ा कर दिया जाता है। ये भी इसका मतन है। दूसरा उनका ये भी कहना था कि कभी कुतुब में से खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज निकाल दिया जाता है, लेकिन आज तक इन साजिशों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन हमें तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भीख। और इस सिलसिले में पंजाब असम्बली में मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई है। बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। फैसलाबाद से खबर है। फैसलाबाद के इलाके रेल बाजार में रिश्तेदारों के दरमियान जायदाद के तनाज़े पर झगड़ा। मुल्ज़िमान ने बीच सड़क शहरी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद के बायस 60 साला शख्स के बाजू की हड्डी और दांत टूट गए। बिलाल सिकंदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बिलाल सिकंदर, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला था? जी देखिए, थाना रेल बाजार की हदूद में ये वाकया पेश आया जहां पर भतीजों ने अपने ताया के मकान पर मुबैना कब्जा करने की कोशिश की और वहां पर अपने ताया के साथ ही इनकी हाथापाई हुई। और ये 60 साला शख्स है इस्लाम, जिसके इन्होंने बाजू की हड्डी और दांत तोड़ दिए। और फुटेज में भी ये देखा जा सकता है कि उसको किस तरह से खींच रहे हैं और उस पर तशद्दुद कर रहे हैं और उस पर उसके मकान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर इस शख्स की जानिब से थाना रेल बाजार में बाकायदा तौर पर इनके खिलाफ दरखास्त भी दे दी है, जिसमें 5 नामजद और 7 नामालूम अफराद के खिलाफ। बिलाल सिकंदर, इस बारे में आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कहा है कि जब से तहरीक इंसाफ की वबा सिंध में आई है, हालात खराब है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। कराची से ये रिपोर्ट देखिए। मुर्तजा वहाब की सिंध असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि तहरीक इंसाफ वबा है, जब से सिंध में आई है हालात खराब हैं। मईशत को जितना नुकसान पिछले 20 माह में विफाक ने दिया, किसी ने नहीं दिया। PTI वाले आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चले जाते हैं। उनका काम इंतशार फैलाना है, क्योंकि कोई और काम तो है नहीं, है वेले।
تو دن بھر کچھ نہ کچھ تو اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے, گھر سے تو باہر نکلنا ہے, تو پریس کانفرنس میں آ کے بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں جس میں بعد میں شرمندگی ہوتی ہے. سندھ حکومت کے ترجمان کا کہنا تھا پاکستان بھر میں سب سے بڑا مسئلہ ابھی کورونا ہے, اس پر بھی سیاست کر رہے ہیں. پیر جو گوٹ واقعے پر سیمپلنگ میں غلطی ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ غلط طریقے سے پازیٹیو ٹیسٹ آ جائے آپ کا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کبھی ٹیسٹ کا سیمپل لیتے وقت کوئی غلطی ہو گئی اور اس کی وجہ سے آپ کا ٹیسٹ کا رزلٹ نیگیٹو آ سکتا ہے, لیکن کبھی فالس پازیٹیو نہیں آ سکتا. سندھ حکومت کے ترجمان نے آصف زرداری کی صحت سے متعلق سوال پر کہا وہ بالکل ٹھیک ہیں, گورنر سندھ کی تبدیلی کا علم نہیں. سمارٹ لاک ڈاؤن کا دوسرا روز عید کی خریداری کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نکل آئی. ملک کی چھوٹی مارکیٹس اور دکانوں میں عوام کا ہجوم, سماجی فاصلوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا, نہ ہی کوئی احتیاطی تدابیر ہیں. حکومتی SOPs کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں. والدین بچوں کو بھی بازار لے آئے. مارکیٹس اور دکانیں کھلتے ہی شہریوں کا رش. خواتین کی چھوٹے بچوں کے ہمراہ عید کی شاپنگ. دکانوں میں SOPs پر عمل درآمد نہ ہونے سے ننھے پھولوں میں کورونا وائرس پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں. اور لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی تو شہریوں نے عید کی خریداری کے نام پر بچوں کو بھی کورونا وبا کے خطرے میں جھونک دیا. مارکیٹس میں خواتین کے ساتھ بچے بھی احتیاطی تدابیر پاؤں تلے رون کر خریداری کر رہے ہیں. بازار میں مختلف اشیاء فروخت کرنے والے بچے بھی کورونا سے بے خبر رزق کی تلاش میں سرگردہ نظر آ رہے ہیں. پشاور سے عرفان موسیٰ رپورٹ کریں گے. روز بعد لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی. عید کی شاپنگ کے لیے بےتاب شہری دکانیں کھلتے ہی گھروں سے نکل آئے. 1.5 ماہ تک گھروں میں بند رہنے والے شہری خود تو گھروں سے نکلنے کی آزادی کا مزہ اٹھانے لگے. ساتھ ہی شہری احتیاطی تدابیر کو رونتے ہوئے بچوں کو بھی اس وبا کے منہ میں دینے نکل پڑے ہیں. ماسک پہننے چاہیے, ہمارے پاس اپنے بھی ماسک ہیں, لیکن یہ بچے کیونکہ گرمی آپ کو پتہ ہے تو گرمی کی وجہ سے ماسک پہنتے بھی نہیں ہیں. ماما کے ساتھ آئے اور دکانیں پہلے بند تھی, ابھی جب کھلی ہے تو صحیح شاپنگ کریں گے. بازاروں میں گھوم پھر کر مختلف اشیاء فروخت کرنے والے بچے بھی کورونا وبا سے بے خبر, کسی احتیاطی تدابیر کے بغیر اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں. مجبور ہے نا, کورونا وائرس تو لگتا ہے تو اب یہ نہیں بھیجے تو پھر کیا ہم لوگ. بازاروں میں کورونا SOPs کی دھجیاں اڑائے جانے اور بچوں کو کورونا خطرے کے باوجود رش میں لانے کی والدین کی لاپرواہی کو روکنے والا بھی مارکیٹوں میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا. کیمرہ مین اجمل خان کے ساتھ عرفان موسیٰ, 92 نیوز, پشاور. اور ناظرین, کراچی میں آج دوسرے دن بھی مارکیٹس اور بازاروں میں کورونا وائرس سے بچاؤ کی SOPs پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے. کراچی سے شہراز احمد کی یہ رپورٹ دیکھیے. میں لاک ڈاؤن میں نرمی کا دوسرا دن. دکان, بازار اور مارکیٹیں کھلی ہیں. شہری عید کی خریداری میں مصروف ہیں. کہیں بھی کورونا وائرس سے بچاؤ کی SOP پر عمل درآمد دیکھنے میں نہیں آ رہا. نہ چہروں پر ماسک ہے, نہ سینیٹائزر. بازاروں میں سماجی فاصلوں کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا. دکاندار اور خریدار کورونا وائرس کو بھول گئے. خواتین بچوں کو بازار لے آئی, کہتی ہیں عید کی تیاری کریں یا کورونا وائرس سے بچیں. سینیٹائزر ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم ساتھ لے کر آئے اور ہم خود اس چیز کی احتیاط کر رہے ہیں. دکانداروں کے لیے بھی یہی ہے کہ انہیں بھی اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے, اور ظاہر سی بات ہے عید کا موقع, شاپنگ تو لازمی ہے. صدر, زینب مارکیٹ, کریم آباد اور حیدری مارکیٹ میں کاروباری سرگرمیاں عروج پر ہیں. حکومت نے دکانیں اور مارکیٹیں کھولنے کی اجازت SOP پر عمل درآمد سے مشروط کی تھی. دکاندار کہتے ہیں SOP پر عمل درآمد کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. کافی لوگ کر رہے ہیں, کافی لوگ نہیں بھی کر رہے ہیں, تو اپنے اپنے حساب ہے. رش زیادہ ہے مارکیٹوں میں, یہ بھی وجہ ہے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں یہ خیال کریں. عمل تو نظر ہی نہیں آ رہا, عوام خود چاہتی نہیں ہے یار اس پہ عمل کرنا. آپ کے سامنے دیں گے سب مارکیٹ کے حال. شہری آج شام 4 بجے تک خریداری کر سکیں گے. ہفتے میں 4 دن پیر, منگل, بدھ اور جمعرات کو کاروبار کھلا رہے گا. جمعہ, ہفتہ اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا. کیمرہ مین شاہد ملک کے ساتھ شہراز احمد, 92 نیوز, کراچی. احساس پروگرام کے تحت رقوم کی تقسیم. پشاور میں ایجنٹس کی جانب سے غربا کی امدادی رقوم سے کٹوتی کا سلسلہ نہ رک سکا. واحد گڑھی میں ایجنٹس امدادی رقم سے فی کا 100 روپے وصول کرنے لگے ہیں. اسی پر بات کریں گے. رحم یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رحم, بتائے گا اس تمام تر صورتحال پہ انتظامیہ کا کوئی موقف سامنے آیا ہے؟ جی بالکل, یہ چارسدہ روڈ کا ایک علاقہ ہے واحد گڑھی, جہاں پہ جو ریٹیل ایجنٹ ہے انہوں نے ایک احساس پروگرام کے تحت ایک بندے سے 12,000 روپے دیتے وقت ان سے 100 روپے لیے ہیں, جبکہ شکایت ہمیں اور بھی موصول رہی ہے کہ کسی سے 150 اور کسی سے 200 روپے بھی لیے جا رہے ہیں. اس پر اس دکاندار سے, ریٹیلر سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کے مطابق جو ان کا مقررہ جو کمیشن ہے وہ ان کو ابھی تک نہیں مل رہا. اس سے پہلے بھی جتنے لوگ ہم نے پیسے دیے ان کا کمیشن بھی نہیں ملا اور ابھی تک نہیں مل رہا. اس وجہ سے وہ
ان سے 100 روپے اور 150 روپے لیتے ہیں. تاہم اس حوالے سے جو اس پروگرام کے جو اسپیشل سیکرٹری ہے ان سے جب ہماری بات ہوئی، ان کے مطابق اس سے پہلے بھی ہم نے کاروائیاں کی ہے اور 20 سے زائد ایسے ریٹیلر جو ہے صرف پشاور میں ہم نے ان کو جو ہے گرفتار کیے اور ان کی جگہ پہ نئے ریٹیلر کو ہم نے مقرر کیے ہیں. ہم ابھی جو شکایت موصول ہوئی ہے ابھی جو ہے آج کی خبر ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس پہ نوٹس لیا اور ہم اس ریٹیلر کے خلاف بھی کارروائی کریں گے، کیونکہ بقول اس سیکرٹری کے اسپیشل سیکرٹری کے کہ ان کے جو کمیشن ہے وہ ان کو اسی وقت مل جاتا ہے جیسے ہی وہ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے، راہم یوسف زئی ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے SOPs پر کسی نے عمل نہیں کیا. ایسا طریقہ کار نہ اپنایا جائے کہ حکومت کو دوبارہ سختی کرنا پڑے. آج سندھ سے کورونا کے سب سے زیادہ 18 اموات سامنے آ رہی ہیں. اس وقت تک 218 اموات ہو چکی ہیں. 24 گھنٹے میں 593 نئے کیسز سامنے آئے ہیں. صرف کراچی میں 412 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے وقاص باقر ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقاص باقر، آگاہ کیجیے گا، سندھ حکومت کی جانب سے 24 گھنٹوں کے کیا اعداد و شمار شیئر کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، سندھ میں کورونا وائرس کے حوالے سے جو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اعداد و شمار ہے اس کے مطابق سندھ میں جو مجموعی کورونا ٹیسٹنگ کی استعداد ہے اس سے بالکل کم جو ہے وہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4064 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 593 افراد میں کورونا پازیٹو کی تصدیق ہوئی. سندھ میں اس وقت تک 91,117 افراد میں مجموعی طور پر ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور 12,600 کورونا ٹیسٹ رپورٹ مثبت سامنے آئے ہیں. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے آج اپنے ایک ویڈیو بیان میں بتایا کہ جو گزشتہ روز کاروباری سرگرمیوں کی اجازت دی گئی، لیکن کاروباری افراد نے اور عام شہریوں نے صارفین نے بھی SOPs کی پابندی نہیں کی، جس کی وجہ سے کورونا کیسز کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا. اور اب سے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ رینڈم ٹیسٹنگ کرے گی، مختلف مارکیٹس میں جا کر، دکانوں پر جا کر ٹیسٹنگ کی جائے گی. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کے اگر SOPs پر عمل نہیں کیا جائے گا تو سندھ حکومت اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہوگی. کورونا اگر ٹیسٹنگ کی بات کی جائے، جو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ کیسز کراچی کے ضلع جنوبی سے 124 رپورٹ ہوئے، جبکہ ضلع شرقی میں 92، اورنگی میں 51، جیکب آباد میں 41 اور حیدرآباد میں 24 افراد میں کورونا پازیٹو کی تصدیق ہوئی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ بھر میں 18 افراد کورونا وائرس کا شکار تھے وہ انتقال کر گئے. یہ 70 دنوں میں سب سے بڑی تعداد ہے جو کہ کورونا پازیٹو کا شکار ہو کر انتقال کر گئے. وقاص باقر، شکریہ آپ کا. اور لاہور کی صورتحال بھی مختلف نہیں ہے. لاہور کی مارکیٹس میں شہریوں کا رش لگ گیا ہے جو SOPs کو نظر انداز کرتے ہوئے شاپنگ میں مصروف ہیں. بعض افراد اپنے ساتھ ننھے بچوں کو بھی لے کر مارکیٹ پہنچے اور کورونا وائرس کو دعوت دینے لگے. تفصیلات خاور مغل کی اس رپورٹ میں. حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کیا کی، عوام کورونا وائرس کو ہی بھول گئے. دکانیں کھلنے پر مارکیٹوں میں شہریوں کا جم غفیر لگ گیا. شہری احتیاطی تدابیر اپنائے بغیر شاپنگ میں مصروف ہو گئے. لاہور کے اچھرا بازار میں شاپنگ کے لیے آئے شہریوں نے سماجی فاصلہ یاد رکھا، نہ ہی SOPs پر عمل کیا. اپنا خیال رکھنا تو درکنار، شہری اپنے بچوں کو بھی لے کر مارکیٹ پہنچے اور عید کی شاپنگ کرنے لگے. کہتے ہیں بہت دن بعد یہ موقع ملا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ طویل لاک ڈاؤن کے باعث کچھ نہیں خرید سکے، اب ساری شاپنگ کریں گے. بچوں کی تو شاپنگ ہوتی ہے، ظاہر انہیں ساتھ نہ لے کے آئے تو ان کے سائز کی چیز لینی ہوتی ہے، اس کے علاوہ تو نہیں نہ آ سکتے. کچھ ہماری بھی کوتاہیاں، کچھ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. یہ حکومت کے ساتھ عوام کو بھی چاہیے کہ مل کے چلے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ کام بند ہونے سے مالی مشکلات کا سامنا تھا، اب مارکیٹ کھلنے سے سکھ کا سانس لیا ہے. انارکلی بازار میں بھی شہریوں کا خوب رش لگا رہا. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر سہیب شاہد کے ساتھ خاور مغل، 92 نیوز، لاہور. دوسری جانب فیصل آباد کے بازاروں میں بھی لاک ڈاؤن میں نرمی ہوتے ہی دل دھرنے کو جگہ نہیں ہے. رش اور دھکم پیل میں کسی کو کورونا سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر تک یاد نہیں. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنی نمائندہ شائستہ شیخ سے. شائستہ، تازہ ترین صورتحال سے اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، فیصل آباد میں بازار کیا کھل گیا کہ خواتین کو خریداری کرنے کی کھلی چھٹی مل گئی ہے. خواتین کپڑے، جوتوں، جیولری اور ہینڈ بیگ سمیت دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے بازاروں پر براجمان ہے. انارکلی بازار میں جائیں جال پر آئے تو خواتین کا تابڑ توڑ رش ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے جو خریداری کرنے میں مگن ہے.
लेकिन अफसोस की बात है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए कोई भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जा रही। बहुत कम शहरी है जिन्होंने फेस मास्क का इस्तेमाल किया हुए, पैसों का और चीज़ों की लेन देन चल रही है, लेकिन ग्लव्स बहुत कम लोगों ने पहने हुए। बिल्कुल भी इस चीज़ पर अमल दरामद नहीं हो रहा और सोशल डिस्टेंस का तो तस्वुर ही पैदा नहीं होता है। बाजारों में खचाखच खवातीन का रश है, कंधों से कंधे टकरा रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंस हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। दुकानदार भी जो है उन्होंने तमाम अशिया की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ा दी हुई है, क्योंकि उनका कहना है कि हफ्ते में 4 दिन की चांदनी है, तो हमने इसी 4 दिनों में ही तमाम पूरे हफ्ते का जो है वो कमाई करनी है, क्योंकि ईद सीजन चल रहा है। खवातीन को कोई कोरोना वायरस का डर नहीं, सिर्फ एक बात की फिक्र लाहक है कि किस तरह से हमने ईद से पहले तमाम तर खरीदारी करनी है। बच्चों को साथ लाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर साथ लाए जा रहे हैं खरीदारी करने की गर्ज से। तो शहरियों को ये कहा जा रहा है कि खुदारा अगर आप लोगों ने शॉपिंग करनी भी है तो बच्चों को घरों पर रखें, बच्चों की खरीदारी खुद करें और तमाम तर जो है अवामल कोरोना वायरस से बचने के लिए हिफाजती तदाबीर अपनाते हुए मार्केट में और खरीदारी करें। जी सही, बहुत शुक्रिया शाइस्ता इस हवाले से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, उधर सरगोदा में ईद शॉपिंग करने वालों का रश लग चुका है। कोरोना से बचाव के SOPs पर ना ही शहरी और ना ही दुकानदार अमल करते दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आसिम खान हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, बताइएगा, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही? जी बिल्कुल, लॉकडाउन में नरमी के बाद जो है बाजारों की रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं। ताजिर और शहरियों की खरीदारों की एक बड़ी तादाद जो है वो बाजारों में आ रही है और ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रही है। 1.5 माह से ज़ायद अरसा जो है घरों में रहने के बाद जो है अब वो दोनों ही ताजिर तबका और शहरी जो है वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें रमज़ान उल मुबारक के दौरान और ईद उल फितर की जो है ख़रीदारी करने का जो है वो भरपूर मौका मिल गया। इस वजह से यहाँ पे ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान हर कोई जो है यहाँ बाज़ारों का रुख कर रहे हैं और ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ जो कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो SOPs जारी किए गए थे उनके ऊपर कहीं पे भी जो है वो अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ना ही कहीं पे मास्क या सैनिटाइज़र और जो दीगर SOPs जो जारी किए गए थे वहाँ उनके ऊपर कहीं पे भी अमल दरामद किया जा रहा है। ना ही मास्क नज़र आ रहे हैं, ना ही सैनिटाइज़र वगैरह जो है वो नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे के साथ ना ही समाजी फासला बरकरार रखा जा रहा है। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे रश देखने में आ रहा है, ख़ुसूसन ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो बाज़ारों के अंदर मौजूद है और अपनी मनपसंद जो है वो शॉपिंग भी करती हुई नज़र आ रही है। उनका ये कहना है कि ईद उल फितर की आमद है, इस वजह से वो चाह रहे हैं कि पहले ही लेट हो गए हैं, इस वजह जल्द से जल्द जो अपनी शॉपिंग भी पूरी करनी चाह रहे हैं। लेकिन इंतज़ामिया इस सिलसिले में फ़िलहाल तो कोई भी जो है वो ऐसा कदम नहीं उठा रही कि बाज़ारों के अंदर SOPs के ऊपर जो है वो अमल दरामद कराया जा सके ताकि कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव को रोका जा सके। जी आसिम, आपने सरगोदा की सूरत हाल से आगाह किया, शुक्रिया आपका। कराची में सैलून सेंटर बंद होने से मालिकान और कारीगर परेशान हैं। कारीगर कहते हैं पूरा साल इस महीने का इंतजार किया और अब दुकानें बंद होने से घरों पर फाकों की नौबत पहुंच गई है। तफसीलात बताएंगे इब्राहिम रिंद अपनी इस रिपोर्ट में। शहर कायद में मखसूस दुकानें तो खोलने के अहकामात मिल गए, लेकिन सैलून सेंटर न खोल सके, जिस पर सैलून सेंटर चलाने वाले अफराद भी शदीद परेशान हैं। कहते हैं सियासतदानों का मेकअप भी तो यही सैलून के कारीगर करते हैं। क्या कोरोना सिर्फ हमारी दुकानों में है? वजीर आला सिंध साहब बड़ा तैयार होकर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि इतने केस आ गए, उनके कलर लगा हुआ था, शेप बनी थी, वो कौन बनाता है? वो भी तो हेयर ड्रेसर बनाता है। सैलून सेंटर में काम करने वाले कारीगरों का कहना था कि पूरे साल इस महीने का इंतजार करते हैं। अब सेंटर पर पाबंदी लगाई गई है, जिस पर घरों में फाके हो रहे हैं और हुकूमत अपनी सियासत में लगी हुई है। इससे ऐसा ना हो कि हम रोडों पे निकल आएं, अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाएं और हमारी हुकूमत की इसमें बेइज्जती हो। इससे बेहतर है कोई हल निकालें, बैठ के कोई बात करें, हमें कोई SOPs दें। हम अगर अमल ना करें तो बंद कर दें दुकान। परेशानी ये है, कारोबार 2 महीने हो गए बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे ना बिजली का बिल कहाँ से दें, किराया कहाँ से दें, कारोबार है नहीं, लोग आते नहीं है। वो सैलून सेंटर के मुतअद्दिद अफराद ने सैलून सेंटर बंद होने पर हुकूमत सिंध के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का भी इजहार किया। हुकूमत सिंध की जानिब से कराची की मुख्तलिफ मार्केटें खोलने के अहकाम तो जारी कर दिए हैं, लेकिन सैलून सेंटर बंद करने के अहकाम जारी हैं, जिसकी वजह से सैलून सेंटर पर काम करने वाले अफराद भी शदीद परेशान हैं। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो SOPs पर अमल करेंगे, उनकी दुकानें भी खोलने की इजाजत दी जाए। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ इब्राहिम रिंद, 92 न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, सिंध के वज़ीर तालीम सैयद गनी का हल्का इंतखाब उनको याद कर रहा है। चनेसर गोट, आजम बस्ती और मंजूर कॉलोनी की हालत नहीं बदली। हल्के में स्कूल्स तबाहाल हैं, डिस्पेंसरी की इमारत भी कचरे के ढेर में तब्दील हो चुकी है, पार्क्स भी उजड़ चुके हैं। हल्के के लोग कहते हैं कि सईद गनी हल्के में ही रहते हैं, फिर भी मसाइल झूम के तू हैं। कराची से चांद नवाब की ये रिपोर्ट।
जगह जगह कचरे के ढेर, नालों में भी कचरे ही कचरा। ये कराची का इलाका आजम बस्ती है जो कि सिंध के वजीर तालीम सईद गनी का हलके में आता है। इसी हलके में मौजूद स्कूल की हालत भी देख लें। डेस्क तो है लेकिन टूटे हुए, जगह जगह कचरा भी पड़ा है। मंजूर कॉलोनी में कायम डिस्पेंसरी की हालत भी काबिल रहम है, अमला कोई नहीं। साहब जो है सिर्फ वोट लेने के लिए तकरीबन 1 महीना पहले आ जाएंगे, 1-2 रोड कच्चे पक्के बना के बोलेंगे हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। पानी भी नहीं है और बड़े मसले हैं हमारे लिए। ये सालों साल से यहाँ पड़ा हुआ है, ये सईद गनी साहब का इलाका है। वो ना उन्होंने कभी उसके बाद विजिट किया है, जब से इलेक्शन में वो जीते हैं ना यहाँ आते हैं ना जाते हैं। सईद गनी का हल्का है, हमेशा से पीपल्स पार्टी जीतती आई है, लेकिन ये कचरा तो हम पे होश संभाला तब से यहीं देखते आ रहे हैं। पानी नहीं है, कचरा का तो ढेर लगा हुआ, आप कैमरे में दिखाओ। और ये पीछे मंजूर कॉलोनी चले जाए तो इससे भी खस्ता हालत। सईद गनी के हल्के की सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से शहरियों की आमद और रफ्त में भी मुश्किलात पेश आती हैं। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी के हल्के का ये हाल है तो दूसरे हल्कों का क्या हाल होगा ये तो अल्लाह ही जाने। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ चांद नवाब, 92 न्यूज, कराची। और नाज़रीन, बरतानिया लॉकडाउन को मज़ीद बढ़ा दिया गया है। इतवार के रोज़ बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की जानिब से कुछ मामूली तब्दीलियों के साथ लोगों को मशरूत तौर पर काम पर जाने की इजाज़त दी गई तो ऐसा लगा जैसे बीमार मुआशरे को भी ज़िंदगी मिल गई हो। ट्रेन्स में रश और सड़कों पर चहलकदमी शुरू हो गई। तफसीलात देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में। बरतानिया के कई इलाकों में प्राइमरी स्कूल्स 1 जून से मरहलावार खोलने का ऐलान कर दिया गया। जुलाई में ऐसे रेस्टोरेंट्स जिनका ओपन एरिया है खोलने की मशरूत इजाजत दे दी गई है। कोरोना वायरस के दूसरे फेज में नुकसान से बचने के लिए लोगों को अलर्ट रहने की भी हिदायत जारी कर दी गई है। बरतानवी वजीर आजम ने स्टे होम के स्लोगन को सिट अलर्ट स्लोगन में बदल दिया है, लेकिन स्कॉटलैंड की फर्स्ट सेक्रेटरी निकोला स्टर्जन ने इसे समझ से बालातर करार देते हुए लॉकडाउन में फिलहाल कोई तब्दीली करने से इनकार कर दिया है। बरतानवी वजीर आजम ने पार्कों में वर्जिश के औकाते कार बढ़ा दिए हैं और कहा है कि लोग अब ज्यादा देर तक वर्जिश कर सकते हैं और अपने करीबी रिश्तेदारों से मेल मुलाकात बढ़ा सकते हैं। बरतानवी मीडिया और अवाम की जानिब से वजीर आजम के मुबहम फैसलों पर कड़ी तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि लोगों को काम पर जाने का कहा भी जा रहा है और साथ घर रहने का पैगाम भी दिया जा रहा है, जिससे लोग कंफ्यूजन का शिकार दिखाई देते हैं। वजीर आजम का कहना था कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम से कम इस्तेमाल करें और साइकिल और पैदल दफातर जाने को तरजीह दें। कोरोना की वजह से होने वाले लॉकडाउन के पेश नज़र मुख्तलिफ ममालिक में फंसे तलबा, उम्र रसीदा विजिटर्स और माजूर अफराद को पाकिस्तान भिजवाया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत और पाकिस्तान हाई कमीशन की काविशों से लंदन से इस्लामाबाद के लिए तकरीबन 250 से ज़ायद मुसाफिर पर मुश्तमिल फ़्लाइट PK 786 पहुँची थी। तफसीलात देखिए वसीम काज़मी की रिपोर्ट में। लंदन से इस्लामाबाद के लिए तकरीबन 250 से ज़ायद मुसाफिरों पर मुश्तमिल PK 786 फ़्लाइट इस्लामाबाद रवाना हो गई। लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और बरतानिया के दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले मुसाफिरों ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया, निलदार अली अबड़ो, कंट्री मैनेजर PIA तैमूर अली मलिक और OPWC तंजीम के ओहदेदारान की काविशों को लायक तहसीन करार देते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। मुसाफिरों का कहना था कि लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया, OPWC फलाही तंजीम के चेयरमैन नईम नक्शबंदी और PIA के तैमूर मलिक ने मुसाफिरों के लिए जिस जज्बे और खिदमत का मुजाहिरा किया, हम इस मुश्किल वक्त में इनके ताउन का शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी था प्रॉब्लम सी UK और नफीस ज़करिया और नईम अब्बासी ने बहुत हेल्प की UK में, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। We salute Pakistan High Consulate, Pakistan High Commission, PIA for respecting, appreciating and doing so much for us. We will forever, for our lifetime, for the rest of our lives, will be very thankful and grateful to you. High Commissioner Nafees Zakaria Sahib and Dildar Ali Abdo Sahib. We thank PIA, we thank Pakistan High Consulate, Pakistan Zindabad. उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में फंसे पाकिस्तानियों के लिए वतन वापसी को मुमकिन बनाने पर हुकूमत पाकिस्तान और लंदन हाई कमीशन के इस ताउन को याद रखेंगे। रूस कोरोना से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ चुका है। रूस में 30 मार्च से लॉकडाउन जारी है, जबकि इसमें 31 मई तक तौसीह भी कर दी गई है। लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस काबू से बाहर होता दिखाई दे रहा है।
शाहिद घुमन की रिपोर्ट। रूस में कोरोना वायरस के रोजाना 1,88,000 टेस्ट किए जा रहे हैं और अब तक 5.6 मिलियन टेस्ट किए जा चुके हैं। रूस में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2.25 लाख से तजावज कर चुकी है, जबकि मरने वालों की तादाद 2,000 से बढ़ गई है। रूसी वजीर आजम मिखाइल मिशोस्टियन समेत रूसी काबीना के 3 आला ओहदेदार भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अप्रैल से 11 मई तक सरकारी और गैर सरकारी इदारों में छुट्टियों का ऐलान कर रखा था, जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नॉन वर्किंग दिनों में तोसी की बजाय 12 मई से तमाम सरकारी इदारे अवाम की खिदमत के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है। सदर पुतिन का कहना है कि छुट्टियां खत्म हो गई हैं, लेकिन कोरोना वायरस के खिलाफ मुतहद होकर लड़ने का अमल जारी रहेगा। अपने रूसी बच्चों को मिलने वाला वजीफा भी दुगना कर दिया है। इसके साथ साथ 27 मिलियन बच्चों की खसूसी इमदाद की जाएगी, जबकि कोरोना वायरस से बेरोजगार होने वाले 14 लाख अफराद की मदद का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा हुकूमत ने 2020 के पहले 6 माह के सेल्स टैक्स के अलावा तमाम टैक्सेस माफ कर दिए हैं। हुकूमत ने स्मॉल बिजनेस की मदद करने वाले फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशंस को 12 मिलियन रूबल देने का भी ऐलान किया है। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से NGOs को हर माह 60,000 रूबल दिए जाएंगे। रूस में ताहाल तलीमी इदारे और कारोबारी मराकज बंद हैं। सदर पुतिन का ये भी कहना है कि तमाम गवर्नर्स अपने इलाकों में लॉकडाउन अपनी मर्जी से खोलेंगे और खुद फैसला करेंगे कि इनके इलाकों में कारोबार खोलने हैं। दूसरी जानिब रूस के नायब वजीर आजम ने कहा है कि रूस के कोरोना वायरस से कम मुतासरा शहरों को जल्द खोला जा सकता है, जबकि मौसम गर्मा में साहिली शहर क्रीमिया, कर्सनादार, सूची वगैरह के बीचेस खोल दिए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। इटली में 5 लाख गैर कानूनी तारकिन वतन को इमिग्रेशन देने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। ज़रूरी और घरेलू काम का कॉन्ट्रैक्ट रखने वालों को इब्तदाई तौर पर 6 माह के डॉक्यूमेंट्स देने का फैसला किया गया है। हज़ारों पाकिस्तानी तारकिन वतन भी इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे, जबकि हुकूमती इत्तेहादी जमात ने फैसले पर एतराज़ कर दिया है। तफसीलात देखिए तनवीर इरशाद की रिपोर्ट में। दुनिया भर में जारी कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन की सूरत हाल की वजह से यूरोपीय ममालिक को अफरादी कुव्वत की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक में कोरोना वायरस के खौफ से वर्कर नहीं आ रहे, जिसके बायस इटली का ज़राअत का शोबा शदीद दबाव का शिकार है। इटली में हर साल हज़ारों की तादाद में वर्कर ज़रूरी शोबे में काम करने के लिए मशरकी यूरोप से आते हैं। ताहम मौजूदा लॉकडाउन और इटली में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों के बायस यूरोपीय ममालिक से वर्कर्स इटली का रुख करने से घबरा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ इतालवी वज़ीर आज़म जोज़ेपे कोंते और सियासी जमातों के दरमियान एक मुआहदे पर इत्तफाक हुआ, जिसके तहत इटली में मौजूद गैर कानूनी तारकीन वतन को रेगुलर करने के लिए एमनेस्टी स्कीम लाई जा रही है। इतालवी हुकूमत के इस फैसले से लाखों की तादाद में गैर कानूनी तारकीन वतन मुस्तफीद हो सकेंगे, जिनमें पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। दूसरी जानिब इतालवी हुकूमत का कहना है कि इस स्कीम के तहत ब्लैक मार्केट का खात्मा होगा, जो कि गैर कानूनी तारकीन वतन को कॉन्ट्रैक्ट के बगैर कम मुआवजे पर काम करवाते हैं, जबकि इस इकदाम से हुकूमत को भी टैक्स की मद में आमदनी होगी। और सऊदी अरब में कोरोना वायरस के बायस गैर मुल्की वर्कर्स माली परेशानी का शिकार हैं। इन हालात में पाकिस्तानी मुखय्यर हजरात इन वर्कर्स की इमदाद कर रहे हैं। पाकिस्तानी होटल भी इन वर्कर्स की बिला तफरीक खाना मुहैया कर रहा है। तफसीलात उमैर अली की रिपोर्ट में। सऊदी अरब के शहर दमाम में पाकिस्तानी वर्कर्स के अलावा दीगर गैर मुल्की वर्कर्स की बड़ी तादाद मौजूद है, जो कोरोना वायरस की वजह से मुलाजमत न होने और कर्फ्यू के पेश नज़र मुश्किलात का शिकार हैं। ऐसे में जहां मुखय्यर हजरात इनकी मदद कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी होटल भी वर्कर्स को खाना मुहैया करते हैं। पाकिस्तानी होटल के मालिक का कहना है कि वो रोजाना सहरी और अफ्तारी में 200 अफराद को खाना मुहैया करते हैं, जिनमें पाकिस्तानी वर्कर्स के अलावा दीगर ममालिक के वर्कर्स भी शामिल होते हैं। जबकि वर्कर्स ने भी होटल इंतजामिया की काविश को सराहते हुए इनके जज्बा इंसानियत की तारीफ की है और कहा है कि इस तरह जहाँ इंसानी जज्बे फरोग पाते हैं, वहीं पाकिस्तान का नाम भी रोशन होता है। इस वक्त सारी दुनिया कोरोना वायरस से मुतासिर है। इस सिचुएशन में बहुत से लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, परेशान हाल है। ऐसे लोगों के लिए मैमूना रेस्टोरेंट के दरवाजे खुले हैं और हमारी तरफ से रोजाना इफ्तार और सहरी के खाने का फिर इंतजाम है। मैमूना रेस्टोरेंट दे रहे, खाना फ्री में दे रहा है, कोई इकामा नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई सैलरी नहीं मिलते, वो लोग को दे रहे हैं। वो अच्छा हो, अल्लाह ताला वो लोग को ज़्यादा ये बने तो और भी ज़्यादा देने के लिए, आदमी लोगों को हेल्प करने के लिए ये करने दो, लेकिन बहुत अच्छा काम है ये। सऊदी अरब में लाखों की तादाद में वर्कर्स मौजूद हैं, जिनको एक जानिब सऊदी खैराती इदारे राशन मुहैया कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तानी मुखय्यर हजरात अपने हम वतनों की मुश्किल घड़ी में सहारा बने हुए हैं। अमेरिका और कनाडा में गैर मामूली मौसम ने शहरियों को हैरान कर दिया है। कई इलाकों में तेज़ धूप के दौरान बर्फबारी, दरख्त, इमारतें और फूल बर्फ में ढक गए। अमेरिकी महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में सर्द मौसम की पेशगोई कर दी है।
कोरोना की वबा की वजह से दुनिया भर में ट्रैफिक, फैक्ट्रियां और माहौल आलूदा करने वाली सन्नतें बंद हैं। जानलेवा वबा की वजह से इंसानियत खतरे में है, लेकिन फितरत फिर से जिंदा हो रही है। दुनिया भर में फिजाई और माहौलियाती आलूदगी का सिलसिला रुकने से मौसम पर खुशगवार असरात मुरतब हुए हैं। दुनिया के कई ममालिक में मौसम और माहौल फितरत से करीब हो रहे हैं, तो कई मकामात पर मौसम गैर मामूली इंगड़ाई ले रहा है। कनाडा और अमेरिका के कई इलाकों में होने वाली गैर मामूली बर्फबारी इसका वाज़ेह सबूत है। दिन की रोशनी में अचानक बर्फ की फुहार शुरू हुई, जिसने देखते ही देखते दरख्तों इमारतों को ढक दिया। कनाडा और अमेरिका के कई शहरों में होने वाली इस गैर मामूली बर्फबारी ने शहरियों को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया। अमेरिकी महकमा मौसमियात ने सूरत हाल को देखते हुए शमाल मशरकी अमेरिका में ठंडे ठार मौसम की पेशगोई की है। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92news HD.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।